Hello students, I'm your Prajna ma'am from Concepts Learning Classes, and in this video I will cover the whole trigonometry of class 11th. So one by one I will make videos, and if you will go through all the videos you'll be able to see that how simple the trigonometry, and it's very interesting, and something very amazing about trigonometry when I just read this historical note given in NCERT that study of trigonometry is was started in India, right? So Aryabhat, Brahmagupta, and so many mathematicians were there जिन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, एंड इस ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन डे बाय डे इंक्रीज होती है. क्लास 10th में हमने पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंस वाज द एप्लीकेशन, बट हाइट एंड डिस्टेंस के अलावा भी अगर हम देखें तो नाउ इन सर्किट्स एंड to calculate the distance and shadow and everything, so and especially in physics you can see you can apply trigonometry, right? And there are many chapters of mathematics which you cannot even study without knowing the trigonometry. So trigonometry is essence, we cannot ignore this, its importance definitely. So then we will start with this, and class 10 तक जो हम पढ़ के आए हैं trigonometry में, that is very little. So when you will study it in class 11th you will explore so many topics. And one thing I just want to tell कि पहले कुछ topics थे जो नाउ न्यू एनसीईआरटी में डिलीटेड है. एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करके होता था, है ना, तो वो भी डिलीटेड है. एंड प्लस अगर आप सोचते हो कि सिर्फ एनसीईआरटी करके आपका कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, तो आई विल से नॉट, बिकॉज एनसीईआरटी इज डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट, बट एनसीईआरटी इज इसेंशियल. अगर आप एनसीईआरटी नहीं जानते हो तो आप कोई और बुक नहीं कर सकते, और नहीं आप जेईई मेंस या कोई भी एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं कर सकते. So you must know NCERT. So first I will start with this, and I will complete this. I will try to complete in few lectures. So if it is possible, just 5 or 6 lectures I will complete it. After that you can go through any reference book or any other book, ML Agrawal or Adi Sharma, and after that you can start solving the PYQs of JEE Mains and advanced. So I will cover all the topics which are now given in the new NCERT. Like so without any delay I will start my topic. First it is given introduction. So introduction, I know that I have already given that a history of trigonometry is very good because it was started in India. And the second topic given in NCERT is angles. So angles में अगर हम देखें तो two things are given. One is positive angle and one is a negative angle. So till class 10th we have studied only positive angle, right? So positive angles are the angles which we take anti-clockwise. अगर हम रेज लेते हैं, दो रेज, तो दो रेज में से एक टर्मिनल एंड होगा, एक स्टार्टिंग एंड होगा, और अगर हम एंगल मेजर करते हैं फ्रॉम this ray to the anti-clockwise direction, then it is called, if suppose this angle is theta, so this will be the positive theta, right? And negative theta if I will take it in clockwise direction, this side, then it is a negative angle. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 30 डिग्री बनाना था तो इवन 6, 7, 8 से अगर हम देखते हैं तो हम 30 डिग्री अगर ड्रॉ करते हैं प्रोटेक्टर से या कंपास से भी, तो हम ऐसे ही बना लेते हैं, दिस इज 30 डिग्री. बट व्हाट इज दिस, अगर हम इस तरफ बनाएंगे तो दिस इज -30, राइट? दिस इज द कन्वेंशन. एंड आफ्टर दैट द गिवन इज degree measure and the radian measure. So what is degree measure and the radian measure? Because angles have two units, one is degree and other is radian. So till class 10th we have studied only degree everywhere, because 30 degree, 40 degree, 80 degree, 90 degree and 180 degree reflex angle, each and everything हमने जो पढ़ा है वो सब कुछ डिग्री में पढ़ा है, रेडियन में नहीं पढ़ा है. तो रेडियन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट unit for angle, I will say, because and we can convert degree into radian definitely, and radian and degree can be interconverted, right? तो अगर हम डिग्री की बात करें तो आप सब लोग को पता ही है कि कंप्लीट एंगल इज जस्ट 360 डिग्री. अगर यहाँ से ले जाते हो दिस एंगल इज कंप्लीट 360 डिग्री. अगर 360 से प्लस जाना है तो ये एंगल वापस से कंप्लीट होगा इस तरह से, दिस इज डिग्री. बट व्हाट इज रेडियन? तो आई विल एक्सप्लेन समव्हाट रेडियन फ्रॉम द बेसिक्स. सो रेडियन इज डिफाइंड, अगर आपको थोड़ा सा मेंसुरेशन याद हो क्लास 10th का, मैं आ जाती हूँ उस पर, कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता था दैट वाज 2πr. सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr होता था. अगर मैं रेडियस को 1 ले लूँ, 1 यूनिट, राइट,
तो 1 यूनिट अगर मैं ले लेती हूँ तो ये जो बनेगा 2 पाई, तो 2 पाई इज योर रेडियन। 2 पाई जो है वो कंप्लीट एंगल को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 पाई आर, अगर आर को आप 1 ले लेते हो तो ये हमारे पास ये पूरा जो होता था वो रेडियन में होता था। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंस ऑफ द रेडियन, क्योंकि हम इसको पूरा रियल नंबर की तरीके से लिख सकते हैं। वी कैन रिलेट इट ऑल द विद द रियल नंबर। तो रेडियन इज कंप्लीटली रिलेटेड विद द रियल नंबर। तो इसको हम पढ़ेंगे इन दिस वे कि वी कैन हाउ वी कैन कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। तो रेडियन डिफाइन कैसे करते हैं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से समझना, एकदम फोकस से, एक ही बार समझ आ जाएगा कि अगर तुमने कोई भी सर्कल लिया, राइट, अगर यूनिट सर्कल लिया तो इसकी रेडियस 1 यूनिट हो जाएगी। सपोज 1 सेंटीमीटर का तुमने सर्कल रेडियस ले लिया, तो अगर इफ यू विल टेक द आर्क ऑफ 1 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस एंड आर्क आर इक्वल, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी 1 रेडियन, राइट। तो सिमिलरली अगर मैं रेडियस और आर्क दोनों को क्या ले लेती हूँ, 5 फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल लिया और आर्क भी क्या ले ली, 5 सेंटीमीटर, तो अगर रेडियस एंड आर्क बोथ आर सेम तो एंगल जो होगा दैट विल बी 1 रेडियन, राइट। तो यहाँ जो एंगल है उसको मैं थीटा से लिख रही हूँ, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, simple. Angle is equal to arc upon radius. When the arc and radius are equal, definitely it is 1 radian. तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा that will be in radian, not in degree. Alright. तो ये तो बाय डेफिनेशन हो गया कि व्हाट इज रेडियन। अगर एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है तो आर्क एंड रेडियस आर इक्वल, देन इट इज 1 रेडियन। तो अगर तुम्हें 5 रेडियन बनाना है तो तुम्हें सिंपली क्या करना पड़ेगा, यूनिट सर्कल ले लिया 1 सेंटीमीटर रेडियस का और 5 सेंटीमीटर की आर्क ले ली, तो आर्क बाय रेडियस करोगे इट विल बी 5 रेडियन। आर्क अगर 5 सेंटीमीटर की है, द आर्क इज ऑफ 5 सेंटीमीटर और रेडियस इज 1, तो आर्क और रेडियस को डिवाइड कर देना है, तो यू विल गेट द 5 रेडियन। तो any radian you can write 1.5 radian, it's given in NCERT, you can go through the book। तो जब आप पढ़ रहे हो, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो डेफिनेटली यू मस्ट ओपन द बुक विद यू। तो मैं क्योंकि एक एक पॉइंट को कवर अप करूंगी, तो पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, यहाँ पे रेडियन दिया हुआ है, तो ये 1 रेडियन, अगर ये आर्क रेडियस इक्वल होंगे इस इज 1 रेडियन, अगर तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे तो इट इज -1 रेडियन, एंड अगर 1.5 रेडियन लेना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, यूनिट सर्कल लेना है और आर्क को 1.5 कर दो, क्योंकि आर्क अपॉन रेडियस करोगे तो जो भी होगा दैट एंगल विल बी इन रेडियन ओनली, राइट। तो ये सब डेफिनेशन है एंड ये फॉर्मूला है, दिस इज द ओनली फॉर्मूला गिवन, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, दैट्स इट। तो अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में हम देख सकते हैं, सिंपली मैंने अभी भी तुम्हें बताया कि 2 पाई रेडियन जो होता है, और 2 पाई आर से ही आया है ये सर्कमफेरेंस, अगर हम यूनिट सर्कल ले रहे हैं तो आर इज 1, तो जो एंगल बन रहा है दैट इज 2 पाई। तो यहाँ जो पाई है वो रेडियन में है, राइट। तो 2 पाई रेडियन इज नथिंग बट 360 डिग्री। सो सिंपली यू कैन से पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। गेटिंग अ पॉइंट। तो पाई ये वो वाला पाई है, पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3.14 या फिर 22/7, जो मेंसुरेशन में यूज किया करते थे, राइट। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे व्हाट इज दिस पाई। तो पाई रेडियन इज 180 डिग्री, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, राइट। तो आई कैन सिंपली से 1 रेडियन इज 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 180 अपॉन पाई डिग्री अगर आप करोगे तो पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 पुट कर देते हो, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट्स। तो व्हाट इज मिनट हियर? तो अगर मैं सिंपली बताऊं तो जो हमारे पास 1 डिग्री होता है, अगर हम 1 डिग्री करें तो 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स के, तो 1 हैश इज रिप्रेजेंटेड बाय मिनट्स एंड 1 मिनट is equal to 60 seconds. Double hash is seconds and this is minute. So 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट कर देंगे तो 1 मिनट आएगा, एंड 1 मिनट के भी 60 इक्वल पार्ट्स कर देंगे तो सेकेंड्स हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं अभी मैं एग्जांपल में क्वेश्चंस में करूंगी, तो इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगी, राइट। तो यहाँ क्या समझ आया कि बिकॉज पाई रेडियन इज 180 डिग्री, सो 1 रेडियन इज 180 अपॉन पाई। और यू कैन से यहाँ से एक और चीज भी निकाल सकते हो, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन,
पाई बाय 180 रेडियन। तो ध्यान रखना यहाँ पाई को 180 नहीं पुट करना, जब रेडियन में कर रहे हो तो पाई को 22/7 पुट करना है। तो अगर आप इसको 22/7 पुट करके सिंप्लीफाई करते हो, चाहे कैलकुलेटर से ही कर लो सिंप्लीफाई, तो ये जो वैल्यू आएगी इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.01746, दैट इज योर 1 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन। तो यू मस्ट नो दिस डेटा। तो बट दिस इज जस्ट नॉमिनल वैल्यू, लेकिन तुम इसे हर वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर पाओगे। तो नाउ अगर हमें 30 डिग्री को लिखना है तो कुछ करना थोड़े ना है, इसको बस पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 0 गया और 3 6 18, तो इट इज पाई बाय 6। 30 डिग्री इज पाई बाय 6। तो अब मैं कभी भी आगे के क्लासेस में, आगे के वीडियोस में कभी भी 30 डिग्री रेयरली बोलूंगी। 30 डिग्री का मतलब अंडरस्टूड है, इट इज पाई बाय 6, राइट। तो अगर तुम पाई को 180 लिख के वेरीफाई भी कर सकते हो, 180/6 दिस इज 30 डिग्री, राइट। सिमिलरली पाई को अगर हम 180 लिख दें तो 180/4 दैट इज 45, 180/3 इज 60, 180/2 is 90 and this is obviously 180 and 3 pi by 2. So अगर हम देखें तो this angle is 0 degree, this is 90 degree, this is 180 degree and this is 270 degree and this is again 360. तो यू कैन से 360 2 पाई है, और पाई को अगर यहाँ 180 पुट कर दो तो 3 × 180/2 दिस इज योर 270 डिग्री, राइट। तो वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री एंड डिग्री इंटू रेडियन। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हमें थोड़ा नया लगता है क्लास 11th में, वो डिग्री रेडियन वाली चीज, तो उस चीज को समझ लेना। तो ये हमें नोशनल इसमें भी दिया हुआ है, राइट। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, राइट। तो 40 डिग्री 20 मिनट्स को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये डिग्री में गिवन है और मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, राइट। तो मुझे पता है 40 डिग्री 20 मिनट्स, तो मुझे पता है कि जो 60 मिनट्स होते हैं दैट इज 1 डिग्री। 60 मिनट्स मीन्स 1 डिग्री। तो 20 मिनट्स मीन्स यूनिटरी मेथड लगा दो, 20/60। 20/60 मीन्स 1/3, तो 1/3 डिग्री। तो 40 होल 1/3, तो 40 × 3 यानी कि हो जाएगा 121/3 डिग्री। तो 121/3, अभी मैंने पूरा मिनट इसको सिर्फ डिग्री में किया है, बट द आंसर वो पूछ रहा है रेडियन में। तो रेडियन में करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई इट विद पाई बाय 180। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 121 पाई अपॉन 18 3 जा 54, सो इट विल बिकम 540। तो दिस इज रेडियन, दिस इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट इज कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री। तो रेडियन को डिग्री में करना है, इसमें देखो डिग्री वाज कन्वर्टेड इनटू रेडियन एंड नाउ आई एम कन्वर्टिंग रेडियन इनटू डिग्री, तो जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 6 रेडियन को मुझे डिग्री में करना है, तो इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन पाई की वैल्यू को 180 मत पुट कर देना, पाई को 22/7 पुट करना होगा। तो इस विल बी 180/22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा एंड इसको 2 से करोगे 2 3 जा 6 एंड 11। सो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लो। दिस इज 180 × 3 इज 3, 540, 540 × 7 कर लो, 540 × 7 दैट इज 3780, 3780/11। और इसको इसके बाद में तुम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 343 होल 7/11, 343, इसको बस डिवाइड करना है 343। तो 343 डिग्री हुआ और ये भी डिग्री है, तो मैं इसको प्लस करके लिख सकती हूँ 343 + 7/11, और 7/11 को मैं अगेन कन्वर्ट कर सकती हूँ किसमें, 7/11 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 60 से, तो देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिनट्स। तो 7 6 42, तो यानी कि इसमें 420/11, तो 420/11 मिनट्स है। तो इसको तो मिक्स फ्रैक्शन में कर लो 11/420, तो 11 3 जा 33 एंड 33 90, 11 8 जा 88, तो 88 2, सो इट विल बी 38 होल 2/11। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 343 डिग्री प्लस 38 मिनट 2/11, तो 2/11 मिनट्स है। इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंड्स। तो दिस विल बिकम 120/11, तो 120/11 कर लो। 11 को 120 से डिवाइड करोगे तो 11 बन जाए 11, यहाँ आएगा 1 10 11, तो 11 से जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे 0 लगा के डेसिमल लगा के, तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10.9 आए, राइट। तो 10.9 सेकेंड। तो आंसर विल बी 343 डिग्री। तो आई थिंक दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी। तो तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, आंसर मैच कर सकते हो। तो
6 रेडियन था, तो पहले मैंने इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 343 डिग्री, और जो ये फ्रैक्शनल पार्ट आएगा मैंने उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया टू कन्वर्ट इनटू मिनट, तो मिनट में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू आई 38 होल 2/11, 38 होल 2/11, आई कैन सी दिस, तो दिस इज 38 होल 2/11, 38 होल 2/11, तो 2/11 को मैंने फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/11 को 60 से मल्टीप्लाई अप्रॉक्सिमेटली 10.9 सेकंड, यू कैन राइट इट 11 सेकंड आल्सो, तो दैट इज ऑब्जेक्टिव अगर होगा तो उसे अकॉर्डिंग मैच कर सकते हो दो वैल्यूज से। तो दिस इज नॉट वेरी वेरी बिग थिंग, बस जस्ट मिक्स फ्रैक्शन में क्लास 4th 5th की चीजें हैं, बस यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो नई थी वो सिर्फ ये थी कि हमें 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, राइट, और रेडियन में करने के लिए उसका रेसिप्रोकल। I will say for example, this is the question, right? I have written the question here also. So find the radius. Find the radius of the circle in which central angle is 60 degree intercept. तो सेंट्रल एंगल मुझे पता है अगर ये सर्कल है, और फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल मुझे निकालना है, और सेंट्रल एंगल मतलब जो सेंटर पे एंगल बनता है वो दिया है 60 डिग्री, राइट, 60 डिग्री एंगल, और मुझे इसकी रेडियस चाहिए, तो 60 डिग्री इंटरसेप्ट बना रहा है, और आर्क लेंथ मुझे गिवन है, आर्क लेंथ मीन्स ये लेंथ, तो आर्क लेंथ कितनी गिवन है 37.4 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, राइट, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो यहाँ जो भी एंगल होगा वो डिग्री में नहीं होगा, दैट विल बी इन रेडियन, राइट। तो पहले तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि 60 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 60 डिग्री मतलब इट इज π/3 रेडियन, क्योंकि 60 को आई विल मल्टीप्लाई विद π/180, तो 0 0 एंड 6 3 जा 18, दिस इज π/3, तो 60 डिग्री को फर्स्ट आई विल राइट π/3, और आर्क मुझे गिवन था 37.4 और रेडियस मुझे निकालना था, तो बाई क्रॉस कर दोगे तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 × 37.4 अपॉन पाई, और पाई को मैं लिख देती हूँ 22/7, ठीक, तो 7 3 जा 21, और 21 × 37.4 कर लो, 21 × 37.4, तो इट इज 785.5 डिवाइडेड बाई 22 कर लेती हूँ, सो इट इज 35.7, तो आई विल चेक द आंसर, 35.7 आ रहा है, ठीक, तो 35.7 इज द एग्जैक्ट आंसर। सो क्या करना था हमें, सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना था, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, और लेकिन पाई को यहाँ पे मुझे 22/7 पुट करना है, दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट, यू विल गेट द रेडियस। फिर नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज, तो ध्यान रखना जो मिनट हैंड वॉच का होता है, दिस इज जस्ट लाइक दिस बिकम्स द रेडियस, दिस बिकम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो मिनट हैंड देखते ही हमें दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि रेडियस गिवन है, तो हाउ फार डज द लॉन्ग डज इट्स टिप मूव, तो टिप जो मूव करती है वो हाउ लॉन्ग का मतलब आई नीड टू कैलकुलेट द आर्क, यानी कि मुझे ये एल निकालना है और रेडियस मुझे गिवन है 1.5, तो सिंपल थिंग इज दिस, हमने क्वेश्चन से आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या गिवन है, और फॉर्मूला वही लगाएंगे, है ना, टू मूव इन 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स दिया, इस बार इन्होंने एंगल नहीं दिया, तो 40 मिनट्स में मेरा जो मिनट हैंड है वो कितनी डिग्री मूव करता है, तो मुझे पता है कि जो मेरा मिनट हैंड है वो 360 डिग्री मूव करता है, कितनी देर में 360 डिग्री मूव करता है, पूरा 1 घंटा लगता है 360 डिग्री मूव करने में, तो 360 डिग्री मूव करता है 60 मिनट्स, सो आई कैन से कि 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री मूव करता है, जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट्स का टाइम लेता है टू कंप्लीट 360 डिग्री, तो 40 मिनट्स में कितना मूव करेगा, तो यूनिटरी मेथड सिंपल, ठीक है, एक चॉकलेट इतने की आती है तो 5 चॉकलेट कितने की आएंगे, 60 मिनट में अगर 360 डिग्री मूव करता है तो 40 मिनट्स में इट विल मूव 40 × 360 अपॉन 60, सो द वैल्यू विल बी 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24, तो 240 डिग्री मूव करेगा, तो एंगल मुझे पता चल गया, बट ध्यान रखने की बात है कि एंगल मैं डिग्री में पुट नहीं कर सकती, तो मुझे 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई विद π/180, सो 0 0 कैंसिल आउट, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, सो इट इज 4π/3 रेडियन, राइट, तो एक काम तो हो गया, फॉर्मूला वही लगना है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो एंगल मैंने निकाल लिया, एंगल इज 4π/3, सो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना था, हाउ फार डज इट टिप मूव, यानी कि आर्क निकालनी थी, तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, एंगल इज 4π/3 इंटू रेडियस इज 1.5, तो 1.5 2 जा 3, तो ये 2 आ गया, और ये 2 से जाएगा तो 2, तो ये यहाँ पे आंसर इज आर्क इज 2π,
आर्क इज 2 पाई। अब पाई को 3.14 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 3.14 सेंटीमीटर, यानी कि इट इज 6.28 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज सिंपल, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। सिंपल कहानी इतनी सी थी कि आपको बस ये पता होना चाहिए 40 मिनट्स मींस 240 डिग्री होता है। तो 240 डिग्री हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, आई विल पुट इट इन रेडियन, सो आई विल कन्वर्ट इट इन रेडियन, मल्टीप्लाई विद, आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद पाई बाय 180, राइट? So the last example is given, if the arc of the same length in the two circles, तो दो different circles हैं लेकिन same arc length है। arc length अगर same है तो एक में एंगल बन रहा है 65 डिग्री और दूसरे में same arc length पे एंगल बन रहा है 110 डिग्री, राइट? क्योंकि हो सकता है दोनों की रेडियस अलग हो। वही पूछ भी रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, राइट? तो इसमें सपोज कर लेते हैं रेडियस इज r1 एंड इन दिस रेडियस इज r2. So same thing, angle is equal to arc by radius, but angle should be in radian, right? तो हमें आर्क लेंथ सेम गिवन है, ये भी L है और ये भी आर्क लेंथ सेम है, तो आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, क्वेश्चन यहीं से कैच कर लेना होता है कि आर्क्स ऑफ सेम लेंथ। तो बिकॉज एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, सो आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, बिकॉज आर्क्स आर सेम। तो θ1 r1 किसके इक्वल हो जाएगा? θ2 r2, यानी कि दोनों सर्कल का जो θ1 r1 होगा वो θ2 r2 के इक्वल होगा। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट r1 बाई r2, तो r1 बाई r2 यहाँ से बाई क्रॉस कर लो, r1 बाई r2 की वैल्यू आ जाएगी θ2 अपॉन θ1, तो θ2 इज 110, तो 110 तो हम पुट कर नहीं सकते बिकॉज इट इज इन डिग्री, सो 110 को आई विल कन्वर्ट, 110 को अगर मुझे रेडियन में करना है तो आई विल मल्टीप्लाई इट विद पाई बाई 180 एंड दिस इज अदर एंगल वाज 65, तो 65 इंटू पाई बाई 180, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं बिकॉज दे आर आस्किंग द रेशियो, तो इट विल गेट कैंसल्ड आउट। सो 5 से अगर हम डिवाइड कर दे, रिड्यूस कर दे, तो 5 13 टाइम्स जाएगा और 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, सो द आंसर इज 22 बाई 13। 22 बाई 20, तो रेशियो पूछ रहा था ना, तो 22:13. I will check the answer. 22/13 is my answer. So it is 22/13, right? So now the examples are done. तो अगर हम एक्सरसाइज में देखें तो सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो बेटर रहता है अगर आप पहले एक बार एग्जाम्पल्स देख लो, तो ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें दिए रहते हैं, तो कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं। तो 25 डिग्री को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है, इट इज गिवन इन डिग्री, और तुम्हें इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली तुम्हें पता है कि इसको सिंपली तुम्हें क्या करना, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, तो इट इज आंसर इज 5 5 बाय 36। सो दिस इज योर आंसर, राइट? एंड अगर नेगेटिव एंगल भी है तो डजेंट मैटर, आंसर इज ऑलमोस्ट सेम वे में निकलता है, तो कोई तरीका चेंज नहीं होता। बस तुम्हें जैसे कि यहाँ पे मैंने मिनट वाला क्वेश्चन कराया था, तो इसको कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट कर लो, राइट? तो 30 मिनट्स पे पहले फोकस करो, ये डिग्री में, तो तुम्हें पता है कि 60 मिनट्स मीन्स होता है 1 डिग्री, तो पहले ये निकाल लो 30 मिनट्स मतलब कितना डिग्री, 30/60 यानी कि 1/2, तो 1/2 डिग्री हो गया, तो दिस इज 47 होल 1/2 डिग्री, राइट? तो माइनस एज इट इज रखना और इसका मिक्स फ्रैक्शन को कर लो, है ना, इम्प्रॉपर में। तो 42 इंटू 7, 7 2 जब 14 और 94 प्लस 1 95/2, 95/2। अब ये पूरा डिग्री में बन गया, तो डिग्री में जब बन गया तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, 95/2 को तुम कर दो इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, राइट? तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस कर दो, 5 से आई थिंक हो रहा है, 5 से करोगे तो 5 9 जा 45 और 5 से करोगे तो यहाँ पे आएगा 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। सो आंसर इज -19 पाई अपॉन 72। आई थिंक आगे रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा -19 पाई बाय 72। चेक कर लेना, राइट? तो कन्वर्ट करने का मतलब देखो, ये 240 डिग्री है, 520 डिग्री है, इसमें कुछ करना नहीं है, तुम्हें सिर्फ पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा। पाई के टर्म में ही आंसर को लिखा रहना, तो 240 इंटू पाई बाय 180 0 0 6 4 जा 24 6 3 जा 18, आंसर इज 4 पाई बाय 3, राइट? 520 इंटू पाई बाय 180 0 0, और उसके बाद रिड्यूस हो रहा है 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4 1 5 2 6 12
चेक कर लेना, 26 पाई बाय 9, तो कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा तो तुम्हें कन्वर्ट करना है। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके वी कैन कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर। बस ध्यान इस बात का रखना, अगर मिनट में है तो डायरेक्टली पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई मत करना, पहले मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट कर लेना और फिर उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में, मतलब जो भी तुम्हारा इम्प्रॉपर जो भी फ्रैक्शन बन रहा हो उसमें बना लेके फिर उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो। अब नेक्स्ट पार्ट में अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी रेडियन में गिवन है ना, और इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 180 अपॉन पाई से, राइट। तो 180 अपॉन पाई से करेंगे तो 2 से जाएगा 2 8 जा, एंड 2 से जाएगा तो देखो पाई को 22/7 पुट करना है, तो 2 से 2 9 जा 18, और पाई को अगर मैं 22/7 लिख देती हूँ, 7 ऊपर आ जाएगा, तो 11 2 जा 22, एंड 2 से जाएगा तो ये 45, तो 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 अपॉन 8, तो 45 इंटू 7 अपॉन 8 कर लो, 45 इंटू 7 अपॉन 8 कितना होगा, कैलकुलेटर से कर लो चाहो तो 45 इंटू 7 अपॉन 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 इंटू 7 अपॉन 8 अगर हम करते हैं तो 45 इंटू 7 315, तो 315 अपॉन 8 आ रहा है, तो 315 अपॉन 8 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 39 होल 45/2, 39 होल 45/2 डिवाइड कर लेना, 45/2, क्योंकि देखो ये डिग्री में आया है, राइट। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा तो हम इसको इंटू 60 कर लेंगे, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी मेरे पास, मिनट्स में आ जाएगी, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये 45/8 आएगा आई थिंक, नहीं तो मैं कर ही देती हूँ, अगर 39 हो उसको डिवाइड करो जरा कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से तो डेसिमल में आ जाएगा, तो 8 को 315 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3 24 और 7 और 5 39, हाँ 39 होल आ रहा है, 39 होल 3/8 आ रहा है, 39 होल 3/8, ठीक है, 39 होल 3/8 आ रहा है, तो 39 डिग्री हो गया, और 3/8 को ये डिग्री ही है तो 3/8 को इंटू 60 कर लोगे तो ये बन जाएगा मेरे पास मिनट्स में, और 4 से जाएगा तो 4 2 जा 8 और 4 15 टाइम्स, 15 4 जा 60, राइट। तो दिस इज 45/2, तो ये आ जाएगा 39 होल 15/2, 39 डिग्री है, 15/2 मिनट्स है, तो 15/2 मिनट्स को अगर हम फिर से कन्वर्ट कर देते हैं उसमें मिक्स फ्रैक्शन में, तो 15/2 इज 7 होल 1/2, तो 39 डिग्री 7 होल 1/2, तो 7 डिग्री 7 मिनट्स हो जाएगा, और 1/2 सेकेंड्स हो जाएगा, तो 1/2 सेकेंड्स को तुम 60 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब मिनट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंड्स, तो 30 सेकेंड्स हो जाएगा, तो 39 डिग्री आंसर हो जाएगा 22 मिनट्स, फिलहाल जो भी आ रहा हो कैलकुलेट कर लो, बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, राइट। आगे देख लो, -4 को भी ऐसे ही कन्वर्ट करना है, 180 अपॉन पाई, और पाई को 22/7, और जो भी मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, जैसे मैंने अभी इस वाले एग्जाम्पल में भी बताया था कैसे कन्वर्ट करना होता है, राइट, तो उस तरीके से कन्वर्ट कर लो। अब वैसे ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, पाई को सिंपली 180 पुट कर दो, तो 5 इंटू 180 अपॉन 3, इससे भी हो जाएगा पाई, क्योंकि अगर पाई के टर्म में दिया है तो आसान हो जाता है, क्योंकि पाई को सीधे सीधे 180 पुट कर सकते हो, तो अगर मुझे क्योंकि डिग्री में जाना है तो पाई को मैं 180 डिग्री लिख सकती हूँ, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, ठीक। तो 3 6 जा 18 एंड 5 6 जा 30, तो दिस विल बिकम 300 डिग्री, और 7 पाई/6 को लिखना है तो 7 इंटू 180 अपॉन 6, और 6 3 जा 18, तो 7 3 जा 21, तो 210 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 पाई/6 इज 210 डिग्री, राइट। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन, तो ध्यान देने की बात है, 360 बार तुम्हारा व्हील घूम रहा है, और एक बार घूमने में कितना रेडियन होता है, एक 1 रिवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन, इंपॉर्टेंट थिंग, 1 revolution of wheel is 2 pi radian, right। तो और ये कितना रिवोल्यूशन कर रहा है, 360 रिवोल्यूशन, तो 1 रिवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन, तो 360 रिवोल्यूशन में कितना रेडियन आ जाएगा, 2 पाई इंटू 360 रेडियन, दैट मीन्स 720 रेडियन, 720 पाई,
तो इतना रेडियन ये घूम जाएगा, ठीक। तो मैंने रेडियन में एंगल निकाल लिया, कितना एंगल चला गया, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है ना। तो यहाँ से हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। अच्छा, तो ये आर्क रेडियस नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो ये बोल रहा है कि 1 मिनट में, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स, 1 मिनट मीन्स, तो दैट मीन्स 60 सेकेंड्स में, यूनिटरी मेथड लगा देती हूँ, 60 सेकेंड्स में ये कितना रेडियन घूम रहा है, 720 पाई रेडियन। 60 सेकेंड्स में घूम रहा है 720 पाई रेडियन। तो ये 1 सेकेंड में कितना घूमेगा, तो 1 सेकेंड में सिंपली 720 पाई डिवाइडेड बाई 60, 0 0 और 6 जाएगा तो 112, ठीक। तो दिस इज 12 पाई रेडियन, तो आंसर इज 12 पाई रेडियन। यानी कि अगर 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस हैं, रिवोल्यूशन इज नॉट रेडियन, तो रिवोल्यूशन को पहले 2 पाई से मल्टीप्लाई करके तुम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, राइट। उसके बाद में तुम निकाल सकते हो कि 1 मिनट में अगर इतना जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना होगा। 1 मिनट में 60 सेकंड्स, ठीक। यूनिटरी मेथड है इसके बाद। तो 4th क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसका हमें एंगल बताना है। अच्छा, ओके। तो एंगल यहाँ कितना बन रहा है, तुम्हें वो चाहिए, वो भी डिग्री में चाहिए। डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस मुझे गिवन है 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क, ओके, आर्क लेंथ इज आल्सो गिवन, आर्क लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, और आर्क लेंथ मुझे दिया है कितना, 22 सेंटीमीटर, और दोनों सेंटीमीटर में दिया है तो कन्वर्जन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और रेडियस 100 है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये मेरे पास आ गया, ये भी सेंटीमीटर में, तो एंगल मेरे पास आ गया 22/100। लेकिन ये जो एंगल आया है ना, दैट विल बी इन रेडियन, और आंसर पूछ रहा था मुझसे किसमें, आंसर पूछ रहा था डिग्री मेजर, तो आंसर डिग्री में पूछ रहा है, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 22/100 तो ये है ही रेडियन में, ये क्या है, रेडियन में है, तो इसको डिग्री में करना है, तुम क्या करेंगे, डिग्री में करना है तुम इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180/पाई, और पाई की जगह आई कैन पुट 22/7। तो मैंने इसीलिए 22 को रिड्यूस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था ये कट जाएगा यहाँ से, है ना, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 0 भी कैंसिल हो जाएगा। सो 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, तो 9 7 ज़ा 63, तो 63 नहीं, हाँ 63/5, 63/5 आंसर चेक कर लेना कि क्या आंसर आ रहा है ना। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस ही मैंने किया है, 63/5 आंसर आ रहा है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा होगा तो उसमें कर लेना, ठीक है। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 12 5 ज़ा 60 होता है, तो 12 होल 3/5 करके आ जाएगा, राइट। लेकिन ये मेरे पास आंसर किस में आएगा, डिग्री में आएगा, तो ये 12 डिग्री होगा, और 3/5 को अगर तुम चाहो तो फिर तुम इसको 3/5 को फर्दर, अगर आंसर तुम्हें मिनट्स और सेकंड्स में भी दिया हो सकता है, तो 3/5 को अगर तुम 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये बन जाएगा 36 मिनट, यानी कि 12 डिग्री 36 मिनट एग्जैक्ट है। और अगर मान लो अभी भी ये फ्रैक्शन में रहता तो मैं उसको अगेन 60 से, फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेती, दैट इज सिंपल। And 5th question is, and I think this is last, no, seven questions are there. So 5th question is, in a circle of diameter, so diameter is given, first of all we will divide it half कर देंगे, तो radius आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। The length of the chord is, okay, chord length is given, circle में मुझे chord length 20 दिया है, ओहो, अगर chord length भी 20 है और radius भी 20 है, तो बन गया equilateral triangle, रेडियस इज 20, दिस इज ऑल्सो 20 एंड कॉर्ड लेंथ इज ऑल्सो 20। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो सिंपल हो गया, क्योंकि सारे एंगल अपने आप ही 60 हो गए, इसीलिए इन्होंने एंगल नहीं दिया, बिकॉज अंडरस्टूड है इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये एंगल थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। लेकिन 60 डिग्री पुट नहीं कर सकते, हमें रेडियन में पुट करना है, तो हम इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो वी विल कन्वर्ट इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा 18, ये जस्ट एंगल हो जाएगा मेरे पास पाई/3 रेडियन, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस जब फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि मुझे आर की चाहिए, माइनर आर की पूछ रहा है, तो यहाँ से माइनर आर की निकलता है, तो और अगर उसको 2πr से माइनस कर दोगे तो मेजर आर्क आ जाएगा, बात अलग है ना। तो माइनर आर्क ही निकलता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो एंगल शुड बी इन रेडियन। तो ये एंगल हो गया, और आर्क तुम्हें निकालना है, और रेडियस तुम्हें गिवन 20, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्क इज इक्वल टू 20π/3, 20π/3, और पाई को पुट कर देना,
तो आंसर चेक कर लेना, हो सकता है पाई के टर्म में ही आ रहा हो, तो दिस इज आंसर 25/3. Next, sixth question is if the two circles arcs of same length subtend angles etc. ये सिर्फ एग्जांपल जैसा क्वेश्चन है ना, रेशियो रेडियस की निकालनी है तुम्हें, और यहाँ पे आर्क्स ऑफ सेम लेंथ देखते ही हमें पता चल जाता है कि आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस होता है, थीटा इंटू आर. तो थीटा 1 इंटू R1 किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा 2 इंटू R2 के. मुझे R1/R2 चाहिए तो मैं थीटा 2 अपॉन थीटा 1 कर दूंगी, और थीटा 2 अपॉन थीटा 1 का मतलब थीटा 2 75 डिग्री है, तो डिग्री में तो पुट कर नहीं सकती, तो क्योंकि रेशियो है तो कट ही जाएगा अगर डायरेक्टली पुट भी कर दूं. तो 75 डिग्री को अगर मैं रेडियन में करूंगी तो π/180, और थीटा 2 इज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इंटू π/180, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो 15, और 5 से जाएगा तो ये 15 से कर दूँ, 15 5 75, 15 4 60, तो 5:4 आंसर. चेक करें, 5:4. And the last question is right, find the radian through which a pendulum swings if its length is. तो ध्यान देने की बात यहाँ पे एक है कि जो पेंडुलम की लेंथ होती है, जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम होता है, दैट इज द रेडियस. कैसे, जैसे क्लॉक पेंडुलम तुम लोगों ने देखा होगा, या फिर स्विंग वाला कोई भी ऐसे पेंडुलम 10th में पढ़ा था. तो अगर हम देखें तो किसी भी पेंडुलम में जो ये वाली चीज होती है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज द रेडियस. तो ये रेडियस दी हुई है. फाइंड द लेंथ, फाइंड द एंगल, तो मुझे थीटा चाहिए, थीटा कैलकुलेट करना है. ठीक, तो मुझे क्या गिवन है, इफ इट्स लेंथ, पेंडुलम की लेंथ जो होती है वो रेडियस होती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है. एंड इट टिप्स डिस्क्राइब्स द आर्क, तो जो टिप होती है वो ऐसे ऐसे पेंडुलम घूमेगा, तो जो टिप जो आर्क डिस्क्राइब करती है वो आर्क दे दी इन्होंने. तो फर्स्ट पार्ट में आर्क ये बेसिकली 10 दिया हुआ है, तो एंगल चाहिए, तो एंगल रेडियन में ही निकलेगा, रेडियन में ही पूछ भी रहे हैं, तो सिर्फ आर्क और रेडियस को डिवाइड कर दो. आर्क मुझे दिया है 10, तो 10/75 यही आंसर है. तो रिड्यूस कर लेना, 5 2 10, और 5 से जाएगा तो 15, तो 2/15 रेडियन आ जाएगा. इस तरह इसमें आ जाएगा, तो 15 आर्क है और रेडियस कितनी है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज रेडियस 15/75, तो 15 5 75, सो 1/5 रेडियन आ जाएगा. और इसमें 21 है, तो आर्क ये हो गई और रेडियस 75, तो 21/75, 3 से कर दो, 3 7 21, और 3 से जाएगा तो 3 2 6 7 3 5 15. ठीक है, आई थिंक 7/25 आ रहा है, चेक कर लो. तो ये मेरे पास आ गए, हमारे पास वैल्यूज किसमें, रेडियन, रेडियन में पूछ रहा था, अगर डिग्री में पूछ रहा होता तो सिंपल कन्वर्ट कर देते. तो व्हाट अबाउट दिस एक्सरसाइज, दिस इन दिस एक्सरसाइज जस्ट angle, arc, radius and degree measure conversion it was given, and this is basic and you must be able to convert it. I think when you will practice you will know how to do this. For any doubt you can comment in the comment section, and for more practice you can join my classes. Okay, thank you.